4D और 5D अभी बताया था, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हाई है। तो ये हमेशा ही क्या बनाएंगे, क्या बोला था उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 50%, 25% बढ़ जाती है crystal field splitting. That means these two are always gonna form what kind of complexes? Low spin complexes, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग। तो इनके केस में भी देखने मत लगना तुम लिगेंड को या ऑक्सीडेशन स्टेट को, बस अगर मेटल तुम्हें दिख गई कि वो 3D नहीं है, वो 4D है या 5D है, तो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ब्लाइंडली तुम बोल सकते हो कि वो क्या है, तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So today we are going to start our lecture on a very important topic of coordination chemistry, that is going to be your CFSE, that is Crystal Field Stabilization Energy. It is a very important topic because many times examiner ask question from this particular topic, and I would say it will be a numerical based question. So it is very important that we are going to do today. But before starting that particular topic, let me ask you a question. So till this point, I think you all know that what are high spin complexes, what are low spin complexes, what are strong field ligand which can afford the pairing of electron to form low spin complex, and what are weak field intermediate ligand, and all these things. You know that. So tell me one thing, that whether on the basis of this knowledge, can you now solve all those 13 to 15 questions that I had given to you in VBT lecture without, there is a star condition, without the magnetic moment value? Can you solve those questions? Of course you can solve those questions without any magnetic moment values, because अगर अभी मैं तुमको उसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दूँ, सो जस्ट कॉम्प्लेक्स को देख के ही तुम पता कर लोगे कौन सा लिगेंड है, कौन सा मेटल है, लिगेंड उस मेटल के साथ कितना स्प्लिटिंग करेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो केपेबल है पेयरिंग के लिए या नहीं। तो जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर लिगेंड पेयरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो तुम इजीली बता सकते हो ना, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, क्या ज्योमेट्री है, यू कैन टेल एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स. So that was why I had told you in that particular lecture also that it is going to help you in CFT also. Try to do those questions also, try to find out whether you are able to see that particular complex is high spin or low spin, because that thing is going to be used to find the CFSE that we are going to do today. Alright. एंड सेकेंड थिंग, लेट मी टेल यू दैट अभी तुमको ये तो पता है कि कौन सा लिगेंड पेयरिंग करेगा, कौन सा नहीं करेगा, बट अभी भी हमें रीज़न नहीं पता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, ऑल राइट, हमने निमोनिक देख लिया, याद कर लिया, हमें पता है, ठीक है, हम कर लेंगे, बट वाई देयर इज अ सेट ऑफ लिगेंड विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड विच इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, एंड वाई there is a set of ligand which is weak field or intermediate? We don't know the reason behind that particular thing. So that reason you will get in ligand field theory, and that we are going to do after the CFSE. When CFSE is going to finish, then we are going to start with the very important and the recent one in coordination chemistry, that is ligand field theory. There you are going to get your answer that why some are strong, why some are weak. All right. So let's start today's lecture with the CFSE, that is Crystal Field Stabilization Energy. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जब तुम्हारे पास मेटल है and when the ligands are approaching to the metal to form a particular geometry, let us say MLN, so the formation of this crystal field, whatever, whether it is a tetrahedral crystal field, octahedral crystal field, square planar crystal field, so after formation of this particular crystal field, there will be stabilization, all right, and to get stabilized, it releases some amount of energy. That energy is said to be crystal field stabilization energy. Getting the point? Because देखो, तुम्हें पता है पहले क्या होगा, यहाँ पे इससे भी पहले क्या स्टेप आएगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनेगी, राइट, उसके बाद ही तो कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, why this exactly form to get stabilized, and the energy that it releases in this process is called crystal field stabilization energy. Now there is a very important point.
that is, do not get confused between CFSE and DAL value, DALO or whatever, DAL tetrahedral. This was what? This was crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy, and this is what? Crystal field stabilization energy. तो जब ये पर्टिकुलर फॉर्म होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है टू गेट स्टेबलाइज दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री, दैट इज CFSE. बट व्हाट इज DALO? In the formation of a octahedral geometry, when the ligand approach toward the metal, there is a breaking of the degeneracy of d orbital which are there in the spherical crystal field. That degeneracy then breaks and splits into the two, we can say two set of orbitals. So that energy between those orbital is said to be crystal field splitting energy. Getting the point? That is your crystal field splitting energy. But this is the CFSE, stabilization energy. So do not get confused between these two. So let us find out that how to calculate this CFSE if a particular complex is given to you. तो देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तुम्हें पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है कैसे फिल होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसा है और वो कैसे बिहेव करेगा, वो हाई स्पिन बनाएगा या लो स्पिन बनाएगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, तो CFSE भी तुम्हें निकालना आती है. तो देखेंगे कैसे. तो देखो ऐसे कुछ यहाँ पर कॉलम बना लेंगे. जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन. देन देयर विल बी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड. देन वी हैव हाई स्पिन एंड लो स्पिन. ठीक है. तो जितने भी हमारे पास, मैं कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे DN कॉन्फ़िगरेशन D1 to D10 इन ऑक्टाहेड्रल. ऑल राइट. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल. दिस इज ऑल्सो द केस ऑक्टाहेड्रल. तो ऑक्टाहेड्रल आ गया तो टेट्राहेड्रल इज जस्ट सेम. D1. ठीक है. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स. सो लेट अस से वी हैव अ मेटल and 6 ligand, all right, and some oxidation state n dash. तो तुम्हें पता है मेटल पे तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मेटल का तुम्हें आता है निकालना. वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो मेटल जिस आयन में होगा Mn+, उसकी जो DN कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात हो रही है. ऑल राइट. सो यू नो दैट सबसे पहले क्या बनेगा? स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड. स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनेगी तो क्या होगा बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएगा. ठीक है. हाई स्पिन हो गया. हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया भाई? स्प्लिटिंग हो गई. EG T2G. हाई स्पिन मतलब क्या? स्प्लिटिंग क्या होगी? कम. दिस इज DALO, कम होगा. लो स्पिन में क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. EG T2G. और ये टोटल यहाँ पे क्या होगा? DALO. This is DALO in case of low spin if low spin complex form, and this is DALO if high spin complex form. We are doing it in general only. All right? Okay. अच्छा, D1 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो अगर स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड हो मीन्स अभी ऑक्टाहेड्रल या आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल करते हो. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे कैसे करते हो? 2 रूल लगाते हो ना, हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन रूल. ऑल राइट. तो क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए अपोजिट स्पिन में. ठीक है. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर रहे हो तो दूसरा ऐसे नहीं आएगा, हमेशा ऐसे आएगा. जो हुन्स रूल है वो क्या बोलता है कि सबसे पहले अगर तुम फिलिंग कर रहे हो तो जितने भी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे. बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तुम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल कर दो अगर और बाकी को खाली छोड़ दो. नो, बिकॉज इन दिस केस यू आर इंक्रीजिंग द रिपल्शन. अगर वो यहाँ रहेगा तो देर विल बी मोर स्टेबलाइजेशन, एक्सचेंज एनर्जी विल बी मोर. सो यू नो ऑल दीज बेसिक्स. ठीक है. बट हाई स्पिन में बोलो ऐसे करेंगे, एक ही है, कोई बात ही नहीं है. लो स्पिन भी हुआ तब भी एक ही बात है. समझ में आ गया? अब कैसे करना है देखो. हमें निकालना है CFSE. किस में? हाई स्पिन में और लो स्पिन में. तो CFSE दोबारा क्या बोला था कि जब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन रही है
तब कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है टू गेट स्टेबलाइज, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन है किस एनर्जी लेवल में है, जो एनर्जी लेवल 0.4 डेलो क्या है, स्टेबलाइज। मुझे लिखने की जरूरत है क्या, -0.4 डेलो, दिस इज +0.6 डेलो, दिस टोटल इज डेलो, और तो कुछ है ही नहीं कहीं पे भी, सो दैट्स इट। सो कितना आ गया, -0.4 डेल ओ, तो माइनस इज फॉर रिलीजिंग। तो इतना तो पक्का ही पता है कि CFSE कभी पॉजिटिव तो होगी नहीं, हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर एनर्जी गेन करेगा तो बनेगा ही क्यों, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड से कोई कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कुछ ना कुछ तो ड्राइविंग फोर्स चाहिए, वो क्या होगी, लॉस ऑफ एनर्जी, देन ओनली इट विल गेट स्टेबलाइज, alright, then only it will be thermodynamically stable and kinetically stable, then only it is going to form. So that means it is going to be negative always. So this negative, that means loss of energy, and 0.4 and डेलो। अब समझ में आ गया, CFSE and डेलो, they are two different things, alright. CFSE is in case of D1 configuration, high spin complex, octahedral, 0.4 डेलो। अब लो स्पिन में बोलो CFSE क्या होगी, कुछ नहीं, सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही तरीके से लिखी गई तो सेम ही होगी। 1 इलेक्ट्रॉन है, -0.4 डेलो में है, और कुछ नहीं है तो -0.4 डेलो। अब एक याद आ रहा है एक पॉइंट जो पिछले लेक्चर में बताया था कि D1 में कोई बात ही नहीं है कि लो स्पिन और हाई स्पिन की, क्योंकि दोनों की ही CFSE क्या आ रही है, देखो सेम, समझ गए। तो D1 में तो कोई चक्कर ही नहीं है हाई स्पिन और लो स्पिन का, दोनों में क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज जैसे तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अरेंज कर रहे हो, दोनों में सेम होगा, ठीक है। अब एक समझ में आ गया, तो दूसरा तो ज़्यादा मुझे इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, हुन्स रूल। अब मैं इसको नहीं बना रही हूँ दोबारा, तुम्हें पता है दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, D2 में, यहाँ पे ही जाएगा, तो क्या होगा CFSE, बोलो व्हाट विल बी CFSE, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, किस एनर्जी लेवल में, विच इज़ 0.4 डेलो स्टेबलाइज्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगी एनर्जी, -0.8 डेलो। इसमें बोलो क्या होगी CFSE, सेम होगी ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही आएगा, तो क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी, -0.8 डेलो। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ईजी है। D3 1 2 3 4 5, 3 मतलब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये क्यों बता रही हूँ, आगे बताऊँगी ये क्यों हम कर रहे हैं। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड हम यहाँ पे कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम CFSE यहाँ से निकाल रहे हैं, इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, ऑलराइट। सो ये मैं बताऊँगी आगे, बट D3 में बोलो, अभी भी मैं इसको नहीं बना रही हूँ, बहुत ईजी है CFSE निकालना। D3 भी यहीं पे ही जाएगा, तीसरा दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, सेम ही आएगा। तो बोलो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, जो 0.4 डेलो स्टेबलाइज है, और कुछ तो है नहीं। देखो अभी बता देती हूँ ये क्यों ऐसे, इसको क्यों लिख रहे हैं। मैंने एक बात करी थी पेयरिंग एनर्जी की, करी थी ना, कि जब तुम्हारे पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो डेलो से, तो आपके कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा दूसरे ऑर्बिटल में, तो उसको क्या बोलते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वैसे ही अगर पेयरिंग एनर्जी कम हुई तो क्या बोल देते हो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो वो बात यहाँ से भी तुमको पता चलेगी। देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, देखो जब स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड थी तब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, पेयरिंग की बात ही नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, कोई पेयर्ड नहीं है। सिमिलरली जब तुम हाई स्पिन करोगे तब भी पेयर्ड नहीं होंगे, लो स्पिन करोगे तब भी पेयर्ड नहीं होंगे, दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे भी जैसे स्फेरिक मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम इलेक्ट्रॉन की यहाँ कर रहे हो ना, वैसे ही यहाँ पर है। तो 3 अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, कुछ अलग नहीं किया। डिफरेंस D4 में पता चलेगा। देखो कैसे, ये तो पता चल गया 1.2 डेलो, इसकी करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पे ये भी क्या आएगी, सेम, क्योंकि सेम ही क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की, लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो। ठीक बात, ओके। अब देखो इम्पॉर्टेंट D4 को। D4 में तुम्हारा स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड देखो कैसे आएगा, 1 2 3 4, जैसे कन्वेंशनल करते हो वैसे। बट CFSE कैसे निकालें, CFSE देखो कैसे करेंगे, EG T2G,
Eg, T2G। हाई स्पिन में डालो कम, लो स्पिन में डालो ज़्यादा। 1 2 3 4 ऐसे किया था। हाई स्पिन में क्या होता है बोलो? 1 2 3, बट क्या है, बस में है, बस में साथ वाली सीटी क्या है? खाली, तो वो यहाँ क्यों एडजस्ट करेगा? यहाँ चला जाएगा। बट यहाँ पे ट्रेन में है तो क्या होगा बोलो? बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो क्या करेगा? 1 2 3 यहीं पे एडजस्ट कर लेगा। अब डिफरेंस आ गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करी, यहाँ करी, यहाँ करी, अलग है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे। अब बोलो यहाँ पे कैसे निकलेगी? हाई स्पिन में बोलो CFSE कैसे निकालोगे? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? जो कि क्या है? स्टेबलाइज। मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ हाई स्पिन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स 0.4 डेलो प्लस एक और इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है? जो कि डीस्टेबलाइज है, प्लस 0.6 डेलो। ठीक बात। अब एक और बात देखो, क्या पेयरिंग एनर्जी कुछ आएगा? यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड थे, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड है, तो फिर से कोई पेयरिंग एनर्जी क्या बताया था? जब तुम पेयर करोगे इसके रिस्पेक्ट में, जब तुम अगर उसको पेयर कर दोगे यहाँ पर तो एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, हमने कुछ पेयर ही नहीं किया जब हाई स्पिन बन रहा है तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 1.2 डेलो प्लस 0.6 डेलो, सो दिस विल बी माइनस 0.6 डेलो। किसके केस में? हाई स्पिन के केस में। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? D4। अब लो स्पिन का भी निकालो भी, क्या सेम आएगा? नहीं सेम आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अलग। तो बोलो 4 इलेक्ट्रॉन किस में है? जो कि क्या है? स्टेबलाइज। बाकी डिस्टेबलाइज जो है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई भी पेयर्ड नहीं है, बट यहाँ पे पेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, तो दैट मीन्स +1 पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे तुमको ऐड करना पड़ेगा। बस बात समझ में आ गई ये क्यों बता रही हूँ? तो जब भी ये कभी भी मत भूलना, क्योंकि जो भी तुम जिसका भी CFSE निकालोगे इसको कंसिडरेशन में ज़रूर लेके देखना कि पेयरिंग एनर्जी आएगी या नहीं आएगी। तो वहाँ पे हमने इसको पेयर किया है, नॉर्मली ऐसा नहीं होना था, बट कॉम्प्लेक्स के बाद ये पेयर होगा, तो हमें 1 पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ये फैक्टर इस एनर्जी में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? मतलब इतना एनर्जी तुम इसको एक्सटर्नली देना पड़ा, इसीलिए प्लस। अब देखो क्या हो जाएगा? माइनस 1.6 डेलो प्लस पेयरिंग एनर्जी, सो दिस विल बी द एनर्जी इफ इट इज़ लो स्पिन एंड दिस विल बी द CFSE इफ इट इज़ हाई स्पिन। समझ गए? अब तो बहुत ईजी है, अब तो सारे ही हो जाएंगे। करो D5 देखो फटाफट से क्या होगा। 1 2 3 4 5 स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अगर क्या हुआ भाई? हाई स्पिन, और दूसरा केस क्या हुआ? लो स्पिन। EG T2G, EG T2G। बोलो हाई स्पिन हुआ तो 1 2 3 4 5, क्योंकि डालो क्या है? कम। बट लो स्पिन हुआ तो 1 2 3, डालो ज़्यादा तो 4 5। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे आप बोलो? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और EG में कितने? 2। ये होगी कॉन्फ़िगरेशन अगर हाई स्पिन हुआ। और अगर लो स्पिन हुआ तो क्या होगी? T2G 6 T2G 5 EG 0। फटाफट से CFSE निकालेंगे। कैसे निकलेगी? 3 इलेक्ट्रॉन किस में है? माइनस 0.4 डेलो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेलो। क्या पेयरिंग एनर्जी आएगी? नो, 5 अनपेयर्ड 5 अनपेयर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या आएगा? 0। D5 हाई स्पिन CFSE इज 0। लो स्पिन देखो, दिस वॉज फॉर हाई स्पिन। लो स्पिन देखो कैसे करें? 5 इलेक्ट्रॉन 0.4 डेलो और दूसरा कुछ नहीं है। पेयरिंग एनर्जी है क्या? हाँ, 5 अनपेयर्ड थे यहाँ पे 2 को पेयर किया, दैट मीन्स 2 पेयरिंग एनर्जी। भूलना नहीं है इसको। तो दिस इज माइनस 2.0 डेलो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी।
अब D6 देखो, D6 मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है, D6 करो। D6 में क्या होगा, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि और तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो और तो है नहीं, तो चाहे हाई स्पिन भी हो तो क्या यहाँ पे आना है, यहीं पे आना है ना, ठीक है। और लो स्पिन में क्या होगा, एक अवेलेबल है तो ऊपर नहीं जाएगा, यही जाएगा 6 3। समझ गए बात। कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे T2G4 EG2 T2G6 EG0। CFSE निकालो। हाई स्पिन में क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, 0.4 डैलो, और 2 किस में है, 0.6 डैलो। क्या पेयरिंग एनर्जी आएगी, नो। यहाँ पे भी एक पेयर था, यहाँ पे भी एक ही पेयर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। तो क्या हो गया, 1.6 डैलो प्लस 1.2 डैलो, इट विल बी माइनस 0.4 डैलो। सिमिलरली CFSE निकालो। लो स्पिन में 6 इलेक्ट्रॉन किस में है, माइनस 0.4 डैलो, EG में कुछ नहीं है, प्लस एक अनपेयर, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 ना करना, एक तो ऑलरेडी था ना, एक तो ऑलरेडी था जो तुम्हारा कन्वेंशनल केस में करते स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, एक तो ऑलरेडी था, तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा कितना करना पड़ा, 2। सो 2 पेयरिंग एनर्जी, सो दिस विल बी माइनस 2.4 डैलो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। D7 में 6 है, 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये 6 थे, कैसे थे, 1 2 3 4 5 6, 7 कहाँ आएगा, यहाँ लो स्पिन में। लेकिन अब देखो, अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं ना। ट्रेन में हो तो तुम्हें जिस तुम कंपार्टमेंट में चढ़े हो वहाँ पे कोई सीट ही नहीं है, तो इतनी लंबी जर्नी कहाँ पे करोगे, बैठना तो है ही, तो फिर हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, दूर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 7th इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या करेंगे, CFSE हाई स्पिन में देखो कैसे निकलेगी, सेम है, बहुत इजी है। कितना हो गया, 5 आगे माइनस 0.4 डैलो में, और 2 है प्लस 0.6 डैलो में। पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, 2 पेयर 2 पेयर, माइनस 2.0 डैलो प्लस 1.2 डैलो, कितना आ जाएगा ये तुम्हारे पास, माइनस 0.8 डैलो। सिमिलरली CFSE निकाल लो। लो स्पिन में 6 किस में है, माइनस 0.4 डैलो में, बट अभी 1 है किस में, प्लस 0.6 डैलो, और पेयरिंग एनर्जी आएगी, पर कितनी, 1 पेयरिंग एनर्जी। कोई शक नहीं है ना, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 2, तो एक जाएगा 2.4 डैलो प्लस 0.6 डैलो प्लस पेयरिंग एनर्जी, सो इट विल बी माइनस 1.8 डैलो प्लस पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ लो स्पिन। D8 देख लो, 7 के बाद 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। अब ध्यान से देखना है D8 को, है ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था, D1 D2 D3 D8 D9 D10 में हाई स्पिन लो स्पिन का कोई सीन नहीं है। क्यों, यहाँ पे कर लिया। अब 8 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो देखो ध्यान से, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है ना, चाहे हाई स्पिन लेके कर लो चाहे लो स्पिन लेके कर लो, इसीलिए यहाँ पे भी दोनों की ही CFSE सेम आएगी। तो कैसे, देखो क्या आएगी हाई स्पिन के केस में, 6 है माइनस 0.4 डैलो में, प्लस 2 है 0.6 डैलो में, पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2.4 डैलो प्लस 1.2 डैलो, दैट इज माइनस 1.2 डैलो। सिमिलरली लो स्पिन देखो, 6 किस में आएंगे, माइनस 0.4 डैलो, 2 किस में आएंगे, प्लस 0.6 डैलो। पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या, 3 पेयर, नो, कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। तो माइनस 2.4 डैलो प्लस 1.2 डैलो, करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सेम ही आना था, माइनस 1.2 डैलो। समझ गए। D8 में सिमिलरली D9 में भी दोनों की ही, चाहे हाई स्पिन लेके कर लो लो स्पिन लेके कर लो, सेम ही अरेंजमेंट आएगी। D10 में भी देखो, D9 में 9 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 9 यहीं जाएगा, नीचे तो है नहीं स्पेस, यहाँ पे 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो दोनों की अरेंजमेंट सेम। तो एक ही बार में निकालूंगी, दूसरी की पता ही है सेम आनी है। क्या होगी देखो, हाई स्पिन में
6 इलेक्ट्रॉन माइनस 0.4 डेल ओ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल ओ, no pairing 4 4, all right, so this will be minus 2.4 del O plus 1.8 del O minus 0.6 del O. तो इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है ना, सेम ही अरेंजमेंट है। तो लो स्पिन में भी क्या आएगी, CFSC सेम आएगी, माइनस 0.6 डेल ओ। लास्ट इज D10। देखो D10 में 10 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दोनों की अरेंजमेंट सेम, दोनों में क्या आएगी, सेम। एक की निकाल लो, क्या है 6 माइनस 0.4 डालो प्लस 4 प्लस 0.6 डालो, आंसर विल बी 0 दोनों के केस में। तो 0 CFSC किस किस में आई बोलो, D10 हाई स्पिन लो स्पिन दोनों में ही, वैसे तो कोई मतलब नहीं है, और D5 के हाई स्पिन में क्या है, 0। ठीक बात। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो क्या क्या बातें इसमें आनी चाहिए, एक तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स दे दे तो तुम्हें पता होना चाहिए वो हाई स्पिन बनेगा लो स्पिन, क्योंकि ये नहीं पता होगा तुम सब गड़बड़ करोगे, CFSC गलत आएगी। ठीक है, तो बस यही बात तुम्हें पता होनी चाहिए CFSC निकालने के लिए। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस कि तुम्हारे CSIR में, गेट में, टिफर बार्क, इन सब में कौन से क्वेश्चंस आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFSC प्रीवियस ईयर में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेट मी क्लियर वन थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो वापस जाओ, CFT ऑफ वेरियस ज्योमेट्रीज हमने करी थी, तो आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम सीखा था फॉर स्क्वायर प्लेनर। उसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ज़रा यहाँ पे देख लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुमने किया था ML4 अगर है विच इज़ योर स्क्वायर प्लेनर, तो तुमने यहाँ पे ऐसे किया था, मतलब अगर तुम्हारे पास ये है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, देन दिस विल बी your EG, this will be your T2G if it is octahedral, but if two ligands are removed along the z axis, then there will be destabilization of dx square minus y square, but orbital having your z component, they are going to get stabilized because there is no ligand along the z component, but having x or y component, they are going to get destabilized. So this is dy z and dzx, ये आपने किया था, यहाँ तक किया था। ठीक है, देखो अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मोस्टली तुम्हें पता हो तो D8 कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन D8 है, वो बनाते हैं। मतलब किसकी बात हो रही है, निकल की, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनियम, ठीक है, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर प्लेनर ये किसके लिए स्प्लिटिंग है, जब निकल +2, अच्छा हाँ ये +2 ना, +2 में D8 होगा, हाँ, तो निकल +2 जब स्क्वायर प्लेनर बनाए, तो निकल +2 स्क्वायर प्लेनर बनाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, क्योंकि देखा होगा ना निकल Cl4 -2, ये तो क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल, बट निकल CN4 -2 ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर D8 कॉन्फ़िगरेशन का ये किसके साथ बनाता है, स्ट्रॉन्ग के साथ, वीक के साथ क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या, क्यों का पता तुम्हें चलेगा लिगेंड फील्ड थ्योरी में, दैट लिगेंड फील्ड थ्योरी तुम्हें बताएगी पहले तो रीजन कि कुछ क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कुछ क्यों वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सेकेंडली कब लिगेंड कौन सी ज्योमेट्री को फेवर करेगा, दैट योर डाउट विल बी क्लियर्ड इन योर लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो अभी क्या है, निकल +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर, जिसकी स्प्लिटिंग ऐसी होती है। बट अगर इसी में मैं नीचे जाऊं 4D और 5D में, तो पैलेडियम +2 और प्लैटिनम +2, पैलेडियम +2 और प्लैटिनम +2, ये किसी भी लिगेंड के साथ they form square planar with strong field ligand
एंड विद वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि लिगेंड का रोल ही नहीं आएगा ना, क्योंकि तुमको पता है ये 4D और 5D वाले बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, तो वो किसको फेवर करेंगे, स्क्वायर प्लेनर को फेवर करेंगे, क्योंकि किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके 4D और 5D को। कहाँ पे देखा था हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो पैलेडियम +2 या प्लैटिनम +2 होगा, वो जैसे PtCl4-2 क्या होता है, वो स्क्वायर प्लेनर होता है, इट इज़ नॉट टेट्राहेड्रल, बट विद निकल इट इज़ फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल। समझ गए बात। तो प्लैटिनम +2 और पैलेडियम +2 हो ना, तो वो वीक फील्ड के और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ दोनों के साथ स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। बट देर इज अ ट्विस्ट इन द स्प्लिटिंग, क्योंकि होता क्या है ट्विस्ट, देखो तो अगर मान लो ये तुम्हारा स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है ना, ये से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो ये तो एक तो तुम्हारा क्या हुआ, डीस्टेबलाइजेशन, तो ये तो होगा ही क्योंकि स्क्वायर प्लेनर, dxy का डीस्टेबलाइजेशन। लेकिन जो ये dz² यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे ना होने की बजाय सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी स्टेबलाइजेशन ऑफ dyz एंड dzx। तो कहीं पे ये दिखे तो कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए ही है, लेकिन किस तरह के स्क्वायर प्लेनर के लिए, जिसमें 4D और 5D का मेटल हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें स्प्लिटिंग और भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिगेंड और मेटल की इंटरैक्शन और भी बढ़ जाएगी। समझ गए बात। तो इसीलिए उसमें जो dz² है वो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज, अगर ये कॉम्प्लेक्स होंगे तो। So this is a very important question, and why I am clearing your doubt of this particular over here, because now you know that why this will happen. All right, so this is a very important point to note down. So that's it for today's lecture, and in the next lecture we are going to do some question practice, and then we'll be heading toward the application of your crystal field theory, where we are going to learn about the spinels, about the magnetic moment measurement, and all these things and various other factors. So that we are going to do in the coming lectures, but the next lecture will be the question based lecture. So I'll catch you soon with the next lecture. Thank you so much for listening.